Hello everyone. This is economics class for CA Inter students. And without wasting much time, let's start with the concepts. The first module is related to national income. So in national income, before I start with anything else, let us understand some concepts, few concepts which will help you to understand the further chapter. So without wasting much time, let us start the concepts. Okay, let's come on the board. Okay. So there is one word which is called production. It's really important in your syllabus, I can say. Yeah, I would say, um, to understand the concepts. What is production? If I ask you what is production, so production is what? In normal language, it is converting raw materials into finished goods, right? For example, converting cloth into shirt is a basic, very basic example. Or in other words, you would say it is converting inputs into outputs. Yes or no? That's it. So if these are the simple definitions of production, I would like to ask you some questions and you just have to tell me true or false. The very first question, tell me, converting wood into table is a production. True or false? मन में ही रखो, अभी मुझे मत बता. Second, converting plastic into bottle is a production. The third is transporting goods from Mumbai to Ahmedabad is a production. The fourth sentence is storing, or I would say warehousing goods in Mumbai is a production. And my fifth and last statement is services of policeman is a production. ऐसे मेरे 5 सेंटेंस हैं. तो मुझे बताओ, generally what you would say. I might be wrong, but I'm explaining in general way. Okay, तो मुझे बताओ, normally लोग क्या बोलेंगे? These 2 sentences are production, but these 3 are not a production. This is the normal answer. But in economics, these all sentences are production. These all examples are of production. Why? Because in general language, production मतलब क्या होता है? Production of finished goods, tangible goods only. But in economics, when we are studying economics not only mean production of goods, it also means production of services. तो मुझे बताओ, ये जो ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ये पुलिसमैन की जो सर्विसेज है, ये भी सर्विसेज है कि नहीं? So therefore it is also production. याद करो, फाउंडेशन में आपने एक डेफिनेशन पढ़ा था. What is production? According to Professor Marshall, production is what? Creation of utility. Creation of utility. कौन सी utility? Any kind of utility. याद है ना, utility is what? Want satisfying power of commodity. और उसके 6 टाइप सीखे थे आपने. Form utility, place utility, time utility, knowledge utility, और क्या था? Possession utility, और लास्ट में service utility. याद आ रहा है? ओके. तो ये भी सब यूटिलिटीज ही क्रिएट कर रहे हैं ना. कोई भी यूटिलिटी क्रिएट, देखो पहले ये 2 एग्जांपल्स है, ये क्या क्रिएट कर रहे हैं? फॉर्म यूटिलिटी, है ना. फिर उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, वेयरहाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी, एंड पुलिसमैन क्रिएट्स सर्विस यूटिलिटी. है कि नहीं? Service utility. So these all are the examples of creation of utility, and therefore these all are considered production in economics. Okay, चलो एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा है.
बताओ टू प्रोड्यूस एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, बताओ इस दुनिया में बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस हो रही है, जैसे कि फ्रॉम पिन टू प्लेन, है ना, इसके में बहुत सारी चीजें आ गई, टेबल, टीवी, बाइक, कार, लैपटॉप, मोबाइल, बहुत सारी चीजें। बताओ टू प्रोड्यूस एनी डैम थिंग इन दिस वर्ल्ड, हाउ मेनी थिंग्स आर नीडेड? ऑप्शन ए 2, option B 3, option C 4, and option D depending upon a product. So when I ask this question in my classrooms, majority of students says depending upon a product, which is not true. The correct answer is 4. I'm not saying nobody says that. Few students actually say it's 4. And these 4 things are land, labor, capital, entrepreneur. And प्यार से इन्हें क्या कहा जाता है? Factors of production. क्या कहा जाता है? Factors of production. है ना? अच्छा, नॉर्मल लैंग्वेज वाला नहीं है। बताओ व्हाट इज लैंड? नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलोगे आप? लैंड मतलब क्या? सरफेस ऑफ द अर्थ। बट इन इकोनॉमिक्स लैंड मतलब क्या होता है? ऑल नेचुरल रिसोर्सेस, ऑल नेचुरल रिसोर्सेस, है ना? तो मुझे बताओ, जैसे प्रोडक्शन ऑफ, किधर गया? यहाँ पे हमने डील किया था, हाँ, शर्ट के प्रोडक्शन में जो कॉटन क्लॉथ भी किससे बना है? कॉटन से बना है ना। तो बताओ कॉटन नेचुरल है कि मैनमेड है? ऑफ कोर्स नेचुरल है। तो ये क्या है? इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में इट्स अ लैंड। बताओ टेबल के प्रोडक्शन में जो वुड है वो क्या है? लैंड, क्योंकि वो नेचुरल है ना। वैसे ही मुझे बताओ सनशाइन, एयर, हीट, बहुत सारी आयरन, स्टील, कितनी सारी चीजें ऐसी है जो लाइमस्टोन वगैरह जो प्रोडक्शन में काम आते हैं, बट दे आर नॉट manufactured by a human being, they are natural and therefore they are called land. Achha, what is the reward for land? Reward for land is rent. If you are in the business of supplying land, if you are supplying natural resources to any productive your production activity, you are supplying land, and whatever money you will get, that will be called as rent. Clear? Labor, labor सबको पता है। अच्छा मुझे बताओ, एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक पर्सन है, इसका नाम है मिस्टर ए। ओके, मिस्टर ए जो है उसने फैक्ट्री में 3 आवर्स फुल एफर्ट्स दिए। ओके, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी मेंटल एफर्ट्स, इट कैन बी फिजिकल एफर्ट्स, और उन्होंने 10 चेयर्स प्रोड्यूस किए। तो बताओ इस प्रोडक्शन, इस एग्जांपल में देयर इज वन लेबर। कैन यू टेल मी हु इज दैट लेबर? Simple. Who is labor in this example? And the answer is Mr. A, which is a wrong answer. Efforts, मेहनत को इकोनॉमिक्स में कहा जाता है labor. And what is the reward for labor? The reward for labor is wages, not a salary. Wages. Practically, what is the reward for labor? It is wages. क्लियर? चलो बढ़े आगे। अब मुझे बताओ प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी मैनमेड चीजें लगेगी, ये मैनमेड चीजें क्या क्या होती है? मशीन्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, टूल्स हो गए, ये सारी चीजों को, अब मनी हो गया, है ना, ये सारी चीजों को इकोनॉमिक्स में क्या कहा जाता है? कैपिटल। एंड व्हाट इज द रिवॉर्ड फॉर कैपिटल? इट इज इंटरेस्ट। ओके, एंड द फैक्टर विच ऑर्गेनाइजेस ऑल दिस फैक्टर, अदर फैक्टर्स, ऐसा फैक्टर जो बाकी के फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है, इस बिजनेस का रिस्क जिसके सर पे है, इस बिजनेस में इनोवेशंस लाने का जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, दैट पर्सन इज एंटरप्रेन्योर, एंड ही गेट्स प्रॉफिट अगेंस्ट all his risk bearing, all his innovation activities, and all his organizing activities, right? So these are the 4 factors, and these are the 4 factor payments. क्या बोलेंगे इनको? फैक्टर पेमेंट। सो व्हाट आर द फैक्टर्स? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्या एकदम इजी लैंग्वेज में समझ में है? व्हाट इज लैंड? नेचुरल रिसोर्सेज। व्हाट इज लेबर? ह्यूमन रिसोर्सेज। व्हाट इज कैपिटल? man-made resources. And what is entrepreneur? Organizer, innovator, and risk bearer of the business.
Okay, and what is the factor payments for supplying these things? What rewards they get? So land gets rent, labor gets wages, capital gets interest, and entrepreneur earns profit. क्या ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया प्रोडक्शन के बारे में? ओके, अब मुझे बताओ फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं लोग। एग्जाम्पल है, थोड़ा पेन चेंज कर लेते तो अच्छा लगेगा। हाँ, बोलो, ये कौन है? एनी आइडिया? ये है मिस जोया अख्तर। पता है जिसने क्या बनाया? ऐसे तो बहुत सारे पिक्चर बनाए, बट हम बात करें गली बॉय। ठीक है, गली बॉय की बात करें। मुझे बताओ, जोया अख्तर के छोटे से दिमाग में एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि जो रैपर्स है ना, उनके ऊपर हम मूवी बनाएंगे और इस मूवी को मैन्युफैक्चर करके हम लोगों को थिएटर्स में दिखाएंगे। लोगों को काफी एंटरटेनमेंट होगा और हमें बहुत सारा माल मिलेगा। तो ये आइडिया इनके दिमाग में ऐसा बल्ब की तरह जला। ओके, अब ये चीज के लिए उनको क्या चाहिए? लोकेशन चाहिए। तो मुझे बताओ, जो लोकेशन है वो ये खुद बनाएंगे या तो देखो सेट बनाया उन्होंने। देखो दो चीजें, सेट बनाया तो ये क्या हो गया? मैनमेड। तो ये क्या है? कैपिटल, है ना? और अगर मान लो नेचुरल लोकेशन पे गए तो ये क्या बन गया? लैंड। तो बताओ, सिर्फ लोकेशन से पिक्चर बन जाएगी? नहीं, इसमें काम करने के लिए एक्टर्स चाहिए। तो उन्होंने सोचा ऐसा अतरंगी कैरेक्टर कौन मिलेगा जो रैपर्स का काम कर सकता है। तो उन्होंने सारे कलाकार लोगों को ढूंढना चालू किया। तो उन्होंने रणवीर सिंह, आलिया, फिर विजय वो जो उसका दोस्त था वो, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स को लेकर। बताओ ये लोग क्या कर रहे हैं? इस फिल्म मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में ये लोग लोकेशन, लैंड सप्लाई कर रहे हैं, मशीन सप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो दे आर सप्लाइंग देयर एफर्ट्स। यस और नो? तो ये सब कौन है? लेबर। अब मुझे बताओ, लेबर आ गया, आई मीन वर्कर्स आ गए। अब बहुत सारे टेक्नीशियंस भी हैं उसके अंदर, सिर्फ एक्टर्स नहीं है। तो अब ये बताओ, सिर्फ ऐसा मूवी बन जाएगा? नहीं। तो उन्होंने बोला कि इसके लिए आपको बहुत अच्छे अच्छे कैमराज वैमराज सब चाहिए रहेंगे। कैमराज, है ना, बहुत सारे इक्विपमेंट्स, फिर बहुत सारे वो विजुअल इफेक्ट्स डालने के लिए ये सब मशीन्स, और इनके टेक्नीशियंस भी चाहिए रहेंगे। तो मुझे बताओ, ये टेक्नीशियंस कौन है? लेबर। और ये मशीन्स कौन है? कैपिटल, है ना? ये सब वो बंदी ने अरेंज किया। ऑफ कोर्स ऑथर सब आ गए उसके अंदर, सब वो लेबर में आ गए। बताओ, और उन्होंने एक मूवी बनाई, इसका नाम रखे उन्होंने गली बॉय। करेक्ट? अब ये मूवी देखने के लिए मान लो 10 जन आए, अज्यूम करके चल। और ये 10 जन ने, फॉर एग्जाम्पल, टोटल एक जन ने 100 के हिसाब से कितना कितना हो गया? 1000 रुपीज पे किए। ऐसा हमारा एग्जाम्पल बने। तो बताओ, कंट्री में कितने गुड्स बने? अब ये सब तो इंटरमीडिएट हो गया ना सब, टेक्नीशियन वगैरह। फाइनली तो एक मूवी बना। मान लो इतना ही पैसा मिला, अब 1000 करोड़ भी मिला रहेगा, लेकिन अब अज्यूम करके चलते कि 1000 रुपया मिला, कैलकुलेशन के लिए इजी होगा। तो बताओ, ये एक मूवी बना। ओके, और इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू आया वन मूवी का कितना? 1000 रुपया मिला उनको। ये पूरा 1000 रुपया किसके पॉकेट में गया? जोया अख्तर के। क्या ये पूरा उसका प्रॉफिट है? नहीं। इसमें से ये लैंड के लिए क्या पे करेंगे? रेंट। लेबर को क्या पे करेंगे? वेजेस। कैपिटल को पे क्या करेंगे? इंटरेस्ट। और जो बचेगा वो उनका प्रॉफिट। क्या बोलूं, समझ में? तो ये एक मूवी बना। और देखो, इस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी दूसरे लोगों को भी इनकम जनरेट कर देती। तो अब मुझे बताओ कि पूरे कंट्री में मान लो ये बॉक्स क्या है? हमारा एक कंट्री है। बताओ, ये इस कंट्री में क्या ऐसा एक मूवी बनता है क्या सिर्फ? नहीं। तो कंट्री में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, ये सारे सेक्टर्स में बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं। राइट? मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ही होता है ना, और उसके बदले में बहुत सारा इनकम कमाया जाता है। तो सारे गुड्स का वैल्यू और सारे लोगों का इनकम, कैन आई से दैट दोनों इक्वल? बताओ, दुनिया में ऐसा कोई है जो बिना कोई लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्रेन्योर सप्लाई किए बगैर उसको इनकम मिल रहा है?
बेगर्स को मिलता है, जो करप्शन करते हैं उनको पैसे मिलता है बिना कुछ सप्लाई के। लेकिन बॉस, अभी जैसे मैं एक बंदा हूँ, मैंने 100 रुपए का इकोनॉमिक एक्टिविटी किया, मेरे पास 100 है, मैंने इसमें से ही 10 रुपए इसको दिया ना, तो अल्टीमेटली तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से ही तो ये 100 रुपए आया है। क्या समझ में आ रहा है? सो व्हाट आई वुड से, अगर मुझे कोई बोलता है सर व्हाट इज नेशनल इनकम, क्या बोलेंगे नेशनल इनकम क्या है? तो सिंपल लैंग्वेज में इट इज इनकम ऑफ ऑल सिटीजन्स बोल सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ के मुझे बताओ, सारे सिटीजन्स को इनकम कहां से मिलता है? एक मिनट, टी एक्स्ट्रा। हाँ, सारे सिटीजन लोगों को इनकम कहां से मिलता है? ऑफ कोर्स बाय डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, by getting involved into production of goods or services. So can I say that what is national income? It is money value of all goods and services produced in the economy during given period of time. क्या अच्छे से समझ में? सो व्हाट इज नेशनल इनकम? एक कंट्री में, ओहो एक कंट्री में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उसका मनी वैल्यू इज इक्वल टू नेशनल इनकम। क्या बोलो, अच्छे से समझ में? क्लियर? चलो बढ़े आगे। अब नेशनल इनकम समझने के बाद अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स है विच आर रिलेटेड टू नेशनल इनकम। कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। एक सेकेंड। तो हम लोग सीखने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, और मेरा सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या सीखने जा रहे हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको प्यार से क्या बोलते हैं? जीडीपी। तो देखो, व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? तो पहले मैं मीनिंग लिखता हूं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? इट इज money value of all goods and services produce। तो बोले सर ये तो पहले का ही है, आगे चेंज है ना। produced within domestic boundaries of country। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? अच्छा आगे, वो सब ड्यूरिंग given period of time। दिस इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी। ओके, ये हो गया जीडीपी। क्या बोला? मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। अब मैं क्या करता हूँ ना, जीएनपी का भी वहां पे डेफिनेशन लिख के रखता हूँ, फिर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे ना तो बहुत अच्छे से दिमाग में
फिट हो जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी। ओके, चलो एक और कॉन्सेप्ट है, उसको 3-4 लाइन जरा छोड़ देते तो यहाँ पे डेफिनेशन के लिए आ जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको क्या बोलते प्यार से जीएनपी। नाउ व्हाट इज जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? तो इट इज, it is money value of all goods and services produced by normal residents of country। और आगे हुई during given period of time। अब जरा दोनों में कंपेयर कर लेते हैं या फिर एक एग्जांपल देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आए। देखो हाँ जरा, किधर गया एग्जांपल? हाँ यहाँ, चलो मान लो ये एक कंट्री है, ठीक है। इस कंट्री के अंदर, इस कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए, ये उसका डोमेस्टिक बाउंड्री है ना, उन सब के वैल्यू को क्या बोला जाएगा? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। तो मुझे बताओ, एक सवाल है, कंट्री के अंदर ना, मैं तुमको इन्फो दे रहा हूँ, कंट्री के अंदर ना टोटल 1000 गुड्स बने। कितने गुड्स बने? 1000 रुपए। मान लो एक गुड्स का 1 रुपए है, तो कितने रुपए का गुड्स बना? 1000। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं। बट मुझे बताओ, क्या कंट्री में क्या सिर्फ इंडियन कंपनी से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं? नहीं। जैसे इंडिया में मैकडी है, केएफसी है, होंडा, हुंडई, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, कितने सारी कंपनीज है, राइट। तो मुझे बताओ, डेल, एचपी है ना, तो मुझे बताओ ये माइक्रोसॉफ्ट, तो ये लोग भी तो गुड्स बना रहे हैं। तो मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल इसमें से इंडियन कंपनीज ने कितने का बनाया गुड्स? 600 रुपए का। और फॉरेन कंपनीज ने गुड्स प्रोड्यूस किया 400 का। तो बताओ जीडीपी के वैल्यू में, जीडीपी के वैल्यू में कितना अमाउंट दिखेगा? कितना अमाउंट दिखेगा? जीडीपी इज 1000, जीडीपी इज 600 और जीडीपी इज 400 एंड योर आंसर इज एग्जैक्टली करेक्ट। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुमने आंसर दिया है 1000। क्यों? क्योंकि मीनिंग क्या बोला? व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी क्या बोला? इट इज मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक बाउंड्री, मतलब बाउंड्री के अंदर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्शन होना चाहिए, इंडिया में बना हुआ प्रोडक्शन होना चाहिए, फिर चाहे वो इंडियन कंपनी ने बनाया हो या नेशनल। तो सिंपल देखो, नाम खुद ही बताता है, डोमेस्टिक मतलब कंट्री का बाउंड्री इंपॉर्टेंट है, समझ रहे? नेशनलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेशनलिटी कहाँ इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे जीएनपी के कैलकुलेशन। हाँ एक जरा से नीचे आते, तो पहले हम लोग जरा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट खेल लेते हैं। क्या हो रहा है? एक सेकेंड ना, ये गया, ये भी 0 गया। हाँ, तो अब मुझे बताओ, देखो हाँ, ये इंडिया में इंडियन लोगों ने जो इनकम कमाया वो तो नेशनल, मतलब उसी देश के लोगों ने, देशवासियों ने इनकम कमाया, ओके। लेकिन इंडिया में रह के फॉरेनर्स को जो अमाउंट दिया गया है ना, उसे हम क्या बोलेंगे? पेमेंट्स, पेमेंट्स, राइट। तो मुझे बताओ,
व्हाट इज जीएनपी इन दिस एग्जांपल? जीएनपी मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। क्या ये नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री? नो, दे आर फॉरेन रेसिडेंट्स, फॉरेन फर्म है, राइट? तो इंडियन लोगों का इनकम कितना आएगा? 6। तो तुमने क्या किया, जीडीपी में से पेमेंट्स को हटा दिया, राइट? ये मुझे बताओ, अगर हमने अभी हम लोग को, मेरे को बताओ, इंडियन लोग क्या सिर्फ डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर ही है क्या? तो इंडियन लोग तो पूरी दुनिया में सब जगह पे, तो मैच देखने जाओ, उनके पब्लिक से ज्यादा अपनी पब्लिक है, राइट? तो मुझे बताओ, इंडियन लोग जो यूएसए में है या यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अरे सब जगह पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट ऑफ इंडिया में जितने भी इंडियंस लोग हैं उनका इनकम इसमें आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, दिमाग लगा के बताओ, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? ऑफ कोर्स आना चाहिए, क्योंकि व्हाट इज द डेफिनेशन? रीड इट वन मोर टाइम। मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो दे आर आल्सो रेसिडेंट्स ना, समझ रहे? रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री मतलब इंडियन कंपनी, जैसे मान लो इंडियन कंपनी है टाटा, वो लोग क्या कर रहे हैं फॉरेन में, जैसे देखो एक एग्जांपल, इंडिया टाटा ने साउथ अफ्रीका में एक फैक्ट्री खरीदा था स्टील का। तो देखो टाटा कौन सी कंपनी? इंडियन कंपनी है, वो लोग फॉरेन में ये पैसा कमा रहे हैं। तो मुझे बताओ, जैसे इंडिया में फॉरेनर जो कमाया उस वो क्या पेमेंट हो गया, राइट? तो इंडियन लोगों ने जो बाहर कमाया ना उसको क्या बोलेंगे हम? रिसीट्स, करेक्ट? और हमें ये क्या चाहिए? भारतीय लोगों का इनकम चाहिए या नेशनल, अपने नेशनलिटी वाले लोगों का इनकम चाहिए। तो बताओ वो फिर चाहे, अब यहाँ पे बाउंड्री इज नॉट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे नेशनलिटी इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर, कहीं पे भी पूरे दुनिया में कहीं पे भी इंडियन लोगों ने जो भी इनकम कमाया, दैट ऑल इज इंक्लूडेड इनटू जीएनपी। तो ये क्या हो गया? इसके अंदर रिसीट ऐड हो करना पड़ेगा। तो एक सेकेंड ना, देखो तुमने क्या किया था, जीडीपी में से माइनस पेमेंट किया, तो अब ऐड क्या करना पड़ेगा तुमको? रिसीट करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो रिसीट माइनस पेमेंट है ना, उसको बोला जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोंट वरी, मैं फॉर्मूला लिखने वाला। हाँ, अभी फिलहाल सिर्फ एक्सप्लेन कर, क्या ये समझा अच्छे से? दैट्स इट। तो ये हो गया। तो एकदम कट शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम, एकदम सिंपल कर लेते हैं। व्हाट इज जीडीपी? इट इज मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक बाउंड्री, either by Indian or foreigner, Indian company or foreign company. लेकिन what is GNP? It is money income earned by all the Indians all around the world. यहाँ पे boundary important नहीं है, यहाँ पे nationality important है। क्या समझा दोनों का डिफरेंस? अब हम लोग आते हैं फॉर्मूला में। ओके, ये मुझे बताओ, यहाँ पे क्या लिखा मैंने? ऑल ना, ये ऑल गुड्स मतलब क्या होता है? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। अभी देखो मैं यहाँ पे लिस्ट बना, जैसे मान लो शूज है, सोप है ना, फिर कार है, मशीन्स, फिर रॉ मटेरियल, लेबर, है ना? बताओ, अच्छा लेबर को हटा देते, ये गुड्स नहीं है, चलो गुड्स का बात करते हैं। इक्विपमेंट, बताओ ये सारे गुड्स है, इनमें क्या फर्क है? ये जो गुड्स है ना, ये कौन खरीदते हैं? कंज्यूमर्स। वेर एज ये कुछ गुड्स है, वो कौन खरीदते? मशीन कंज्यूमर खरीदता है, प्रोड्यूसर खरीदता है? प्रोड्यूसर। समझा? तो जो गुड्स कंज्यूमर खरीदते उनको बोला जाता है कंजम्पशन गुड्स, समझ रहे? और जो गुड्स प्रोड्यूसर खरीदते उनको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट गुड्स। क्योंकि मेरे को बताओ, प्रोड्यूसर जो भी गुड्स खरीदेगा वो फाइनल कंजम्पशन के लिए थोड़ी खरीदेगा, वो पैसा स्पेंड कर रहा है विद इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। याद है क्या सीखी तुमने अकाउंट्स में? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? अमाउंट स्पेंड विद इंटेंशन टू मेक प्रॉफिट, है ना? जैसे कि एकदम सिंपल है, मान लो कि हमारा लेक्चर चल रहा, फिजिकल लेक्चर, हाँ अज्यूम करो। तो मैंने क्या किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो एक्स नाम का बंदा ना, इसको मैं प्राइवेट ट्यूशन दे सकता हूँ, है ना? और प्राइवेट ट्यूशन के लिए अगर मुझे अपॉइंट करेगा तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। तो मैंने क्या किया, उससे दोस्ती बढ़ाना चालू किया। तो मैंने रिसर्च में क्या किया, इसको मस्त मस्त इडली खिला रहा हूँ, किस दिन डोसा खिला रहा हूँ, ऐसा करके मैंने उसके ऊपर कुछ 1000 रुपए खर्चा किए। तो बताओ ये 1000 रुपया मेरा एक्सपेंडिचर है, आई मीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है? तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज आई एम स्पेंडिंग विद इंटेंशन टू मेक प्रॉफिट। आई नो थोड़ा चीप लगेगा, बट इट वाज जस्ट एन एग्जांपल। आई स्वेयर मैंने ऐसा कभी नहीं किया, ठीक है? चलो,
तो दिस इज माय इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इज दैट क्लियर? चल, तो तात्पर्य क्या है, ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर खरीदते वो कंजम्पशन गुड्स, और जो प्रोड्यूसर खरीदते वो क्या, इन्वेस्टमेंट गुड्स. क्या ये क्लियर है ना? अच्छा, क्या मार्केट में गुड्स क्या सिर्फ इंडिविजुअल और कंपनीज खरीदते, क्या कंज्यूमर प्रोड्यूसर खरीदते? नहीं, तो गवर्नमेंट भी बायर है बॉस. गवर्नमेंट बताओ फार्मर से गुड्स खरीदता है, एग्रीकल्चर गुड्स खरीदता है राशन में बांटने के लिए. गवर्नमेंट कंपनीज है ना, रेलवे है, भेल, सेल, VSNL, MTNL, इंडियन ऑयल, कितनी गवर्नमेंट कंपनीज है बताओ. ये लोग मशीन खरीदते रहेंगे कि नहीं, ऑफिस के लिए जगह खरीदते. तो बताओ ये लोग भी इन्वेस्टमेंट गुड्स. तो गवर्नमेंट मार्केट में कंज्यूमर भी है, गवर्नमेंट मार्केट में प्रोड्यूसर भी है. इसके लिए गवर्नमेंट का एक अलग से कैटेगरी बना है, गवर्नमेंट गुड्स. तो चाहे कंज्यूमर गुड्स हो, चाहे प्रोड्यूसर गुड्स हो, अगर गवर्नमेंट ने प्रोड्यूस किया है तो उसको क्या बोलेंगे, या गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो उसको क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट गुड्स. क्या ये समझ में? और एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो सबको पता है, यहाँ से गुड्स बाहर बेचा हुआ एक्सपोर्ट, वहां से इधर आया वो इंपोर्ट. तो व्हाट इज जीडीपी के अंदर कौन से गुड्स को इंक्लूड करते? ऑल. क्या ये समझ रहे हैं? तो देखो हाँ जरा, व्हाट इज जीडीपी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, थोड़ा अलग पेन लेते हैं हम, रेड लेते. तो व्हाट इज जीडीपी? तो जीडीपी इज कंट्री के अंदर बने हुए सारे कंजम्पशन गुड्स, सारे इन्वेस्टमेंट गुड्स, सारे गवर्नमेंट गुड्स, प्लस सारे गुड्स जो इंडिया में बने और बाहर गए. अब इंडिया में बन के बाहर गए, उसका वैल्यू लिया, तो बाहर बन के इंडिया में आए, उसका वैल्यू माइनस भी तो करना पड़ेगा. तो इसीलिए हमने क्या किया, x माइनस m को डिडक्ट किया. एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी. क्या ये समझ में आया? When nothing is mentioned, तो ये मार्केट प्राइस. अभी मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या, हम आगे डिस्कस करेंगे. फिलहाल एक बेसिक डेफिनेशन बना है. क्या बोलो, समझ में? करेक्ट, ओके. अब मुझे बताओ, ये कंज्यूमर गुड्स किसने बनाए, इंडियन कंपनी ने, फॉरेन कंपनी ने. ये इन्वेस्टमेंट गुड्स किसने बनाए, इंडियन कंपनी ने, फॉरेन गुड्स में. दिला नहीं है. क्या जीडीपी में ये सब सोचना है? नहीं, कतई नहीं. ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जीडीपी, जीएनपी. सॉरी, देखो ये पिछली बार कुछ तो मुझसे रब हो गया था, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं. गिवन पीरियड ऑफ टाइम. तो मुझे बताओ सबसे पहले जीएनपी में क्या लिए तुमने, देखो याद करो हमारा एग्जांपल. जीएनपी निकालने के लिए तुमने पहले क्या किए, जीडीपी लिए थे, कौन सा 1000 था. फिर उसमें से तुमने क्या माइनस किए, पेमेंट्स, है ना, फॉरेन का, क्योंकि इंडियन का चाहिए तो फॉरेन का इनकम माइनस किया. और इंडियन लोगों ने जो बाहर कमाया वो क्या था, रिसीट्स, राइट. तो जीडीपी प्लस रिसीट माइनस पेमेंट इज जीएनपी, राइट. अब मुझे बताओ, रिसीट माइनस पेमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, क्या नाम था, मैंने बोला था मैं बताऊंगा. इट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अच्छा, इसको और अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या होएगा, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. ये क्या बन गया, जीडीपी. इसमें क्या ऐड किया, R माइनस P. एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ GM. I hope you all understood it. That's it. तो ये हो गया आपका दो बेसिक और बड़े कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी. क्या अच्छे से समझ में? चल आगे बढ़े. अब आ रहे हम नेक्स्ट पेज पे. तो मुझे बताओ, अच्छा इफ यू वांट टू कॉपी, पॉज करके कॉपी कर लेना, ठीक है. चल बढ़े आगे. ओके, देखो अब हमने क्या क्या सीखा, जीडीपी, फिर क्या सीखे, जीएनपी. ये दोनों में देखो, पी मतलब क्या, प्रोडक्ट. तो प्रोडक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्शन, डोमेस्टिक वाला, और यहाँ पे नेशनल मतलब इंडियन नेशनल्स का. और इन दोनों के अलावा बताओ क्या कॉमन चीज था दोनों में, ग्रॉस. ये ग्रॉस मतलब डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड और नॉट येट डिडक्टेड, तो इट इज नॉट येट डिडक्टेड. तो ग्रॉस वाले कोई भी कॉन्सेप्ट से आप डेप्रिसिएशन हटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेट वाले कॉन्सेप्ट. समझ रहे? डोमेस्टिक वाले में अगर आप फॉरेन इनकम ऐड करते हो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड,
तो क्या मिलेगा आपको? नेशनल इनकम, राइट? ऐसा है। तो देखो एक समझने वाली बात क्या थी, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन हट गया तो क्या मिलेगा आपको? नेट। तो हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट जो है वो है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, NDP. So what is NDP? It is net domestic product. और इसका क्या फॉर्मूला रहेगा? क्या कर रहा हूं? What is NDP? तो सिंपल NDP is what? GDP माइनस डेप्रिसिएशन. क्या फॉर्मूला बनेगा? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. ये बन गया GDP और इसमें से माइनस कर दिया D, दैट इज डेप्रिसिएशन. D थोड़ा ढंग से लिखता हूं, समझ लो अपने ऐसी है. ठीक है, चल बड़े आगे. ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है NNP. So what is NNP? It is net national product. तो इसका भी सिंपल मतलब क्या रहेगा बॉस? GNP माइनस डेप्रिसिएशन. व्हाट इज GNP? पूरा इलैबोरेट करेंगे हम लोग, टेंशन मत लो. इट इज GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन. नाउ व्हाट इज GDP? इट इज C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M प्लस R माइनस P. ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और माइनस डेप्रिसिएशन. क्या हर एक एलिमेंट अच्छे से समझ में है? सेट. अब इसके आगे अब हम लोग थोड़ा सा ये चारों कॉन्सेप्ट में थोड़ा और आगे एक स्टेप बढ़ रहे. देखो एक एग्जांपल के साथ मुझे बताओ, कोई भी कंट्री में कोई भी गुड्स प्रोड्यूस होगा तो वो प्रोड्यूस होने के लिए कितने फैक्टर्स की जरूरत होती? हमने शुरू में देखा 4 फैक्टर्स चाहिए. मान लो एक गुड्स प्रोड्यूस हुआ, वो बनाने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर यूज हुआ. ये 4 फैक्टर लगे. मेरे को बताओ, अगर ये 4 फैक्टर यूज हुआ तो जाहिर सी बात है इसको यूज करने के लिए पेमेंट भी हुआ होगा. तो लैंड के लिए क्या पे किया होगा? रेंट, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए पे किया. लेबर के लिए क्या पे किया? वेजेस, फॉर एग्जाम्पल 30 रुपीज पे हुआ. कैपिटल के लिए पे किया हुआ इंटरेस्ट, लेट्स से 10 रुपीज पे हुआ. और एंटरप्रेन्योर ने प्रॉफिट कमाया फॉर एग्जाम्पल 40 रुपीज. तो मुझे बताओ हाउ मच टोटल फैक्टर इनकम इज पेड? तो आंसर इज, देखो ये 50 और ये 50, 100 हो गया. इसको बोला जाता है, थोड़ा अलग पेन से बताएंगे तो अच्छा लगे. इसको बोला जाता है फैक्टर कॉस्ट. क्या बोला जाता है इसे? फैक्टर कॉस्ट. देखो नाम खुद ही बता रहे, कॉस्ट मतलब क्या? एक्सपेंडिचर. किस पे किया है कंपनी ने ये एक्सपेंडिचर? फैक्टर्स पे, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? फैक्टर कॉस्ट, राइट? मेरा सवाल, अगर फैक्टर कॉस्ट 100 रुपीज है, अगर फैक्टर कॉस्ट 100 रुपीज है तो ये प्रोडक्ट मार्केट में 100 में बिका होगा, मोर देन 100 में बिका होगा, लेस देन 100 में बिका होगा? ऑफ कोर्स मोर देन 100. चलो ओके, मान लो मोर देन 100 है. ये क्या है? मार्केट प्राइस. ओके, तो अगर मार्केट प्राइस इसका 120 है, एक सेकेंड माइक बोल गया मैं. तो अगर मार्केट प्राइस 120 है, फैक्टर कॉस्ट 100 है, तो ये 20 रुपए क्या है बच्चों? क्या रहेगा सोचो? प्रॉफिट तो नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है.
तो हमने फैक्टर्स को तो पेमेंट कर लिया, बट हम गवर्नमेंट का हिस्सा भूल गए, है ना। तो गवर्नमेंट को फॉर प्रोड्यूसिंग दिस थिंग हमें कुछ पे करना पड़ेगा, उसे क्या बोलेंगे हम, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसमें क्या ऐड होगा, ऐड इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना। फॉर एग्जाम्पल दैट इज 10 जो हम गवर्नमेंट को पे कर। बट मुझे बताओ, कभी कभी कंपनीज को गवर्नमेंट पे बैक करता है, उसे क्या कहते हैं, सब्सिडीज, राइट। तो मान लो सब्सिडीज कितना है, 10। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट मार्केट में कितने में बिका है, 120। क्या ये सबको समझा, करेक्ट। अच्छा, मुझे बताओ, मुझे बताओ, अब व्हेन नथिंग इज मेंशन, तो ये जितने भी फॉर्मूले अभी हमने सीखे, ये सब अज्यूम टू बी एट मार्केट प्राइस। किसमें अज्यूम किया है, ये मार्केट प्राइस पे अज्यूम किया। क्या ये समझ में है? तो अगर मुझे बोला गया है आप फाइंड करो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, सॉरी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो ये जो ऊपर दिया था फॉर्मूला कौन सा बन गया, मार्केट प्राइस का, है ना। तो जैसे मुझे निकालना है फॉर एग्जांपल एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एनएनपी जो भी दिया हुआ है वो किस पे रहेगा, मार्केट प्राइस पे। तो मुझे उल्टा जाना पड़ेगा ना बच्चों। देखो, फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हुआ, सब्सिडी माइनस हुआ और मार्केट प्राइस मिला। तो जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हमें रिवर्स जाना पड़ेगा। तो जो ऐड हुआ है वो माइनस, जो माइनस हुआ वो ऐड। जैसे 120 में 120 में 30 को माइनस करो, कितना हो जाएगा, 90, और फिर सब्सिडीज को ऐड करो 10, तो वो हो गया 100, है ना। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस से उल्टा जाना है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स ऐड सब्सिडी, दिस इज द फॉर्मूला। और अगर इसको हम इलैबोरेट करें तो क्या होगा, देखो, पहले कंजम्पशन गुड्स किस, कौन से, मार्केट प्राइस पे, फिर ऐड किया इसमें इन्वेस्टमेंट गुड्स, फिर इसमें ऐड किया गवर्नमेंट गुड्स, फिर ऐड हुआ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये भी कौन सा है, मार्केट प्राइस पे, फिर इसमें ऐड हुआ रिसीट माइनस पेमेंट, फिर इसमें से डिडक्ट हुआ डेप्रिसिएशन। तो ये क्या था, जीडीपी, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये क्या बन गया, जीएनपी, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हुआ, क्या बन गया, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, राइट। और अब इसमें क्या होगा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स एड सब्सिडी, दिस इज योर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, मेरा एक सवाल, जब हम बोलते हैं इंडियाज नेशनल इनकम इज फॉर एग्जांपल 50,000 करोड़, ये 2011 का इंडिया का नेशनल इनकम था, तो बताओ ये 50,000 करोड़ जो, सॉरी 50 लाख करोड़ जो है, ये कौन सा अमाउंट रहेगा, एनएनपी रहेगा, जीएनपी रहेगा, क्या रहेगा। तो आंसर इज नेशनल इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू, एक सेकेंड इसको मुझे हटाते, अच्छे से लिखने का ना हमें, national income is always equal to NNP at factor cost. This is nothing but our national, एक सेकेंड एल थोड़ा अच्छे से नहीं है, नेशनल इनकम, याद रहेगा। तो नेशनल इनकम इज नथिंग बट आवर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो, ओके। चलो आगे बढ़े, अब कुछ और कॉन्सेप्ट्स है जो इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो जैसे कि सिंपल, सबसे पहला क्या रहेगा, पर कैपिटा इनकम, सुना रहेगा पर कैपिटा इनकम, इसको प्यार से क्या बोलते हैं, पीसीआई। और कैसे निकालेंगे पर कैपिटा इनकम का सिंपल मतलब क्या है, इट इज पर हेड इनकम बोलो, या फिर इसको ही सीधा बोलो एवरेज इनकम ऑफ इंडियन। कैसे निकालेंगे, तो पर कैपिटा इनकम इज नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, इट इज दैट सिंपल, है ना।
बड़े आगे। अब एक कॉन्सेप्ट है, पर्सनल इनकम। सुना है कभी पर्सनल इनकम के बारे में? उसको प्यार से क्या बोलते हैं? पीआई। चलो सबसे सिंपल, मैं तुमको गैस वर्क करने बोल रहा हूँ। बताओ पर्सनल इनकम, व्हाट डू यू थिंक? इट्स अ माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कि मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट? बोलो। मैंने बहुत सारे क्लास में पूछा, इसमें बहुत सारे लोगों ने, आई गेस 100% सारे लोगों ने माइक्रो बोला, विच इज रॉन्ग। ये मैक्रो है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे नेशनल इनकम से कॉन्सेप्ट, तो इसमें माइक्रो क्यों पढ़ेंगे ना हम? वैसा तो ऐसा है कि पर्सनल इनकम इज अ मैक्रो कॉन्सेप्ट, और इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब क्या है? इट इज टोटल, हाँ, तो इट इज सिंपल, इट सिंपली मीन्स व्हाट? इट इज टोटल इनकम रिसीव्ड बाय ऑल द सिटीजन। अब मुझे बताओ क्या फर्क है रे नेशनल इनकम और पर्सनल इनकम में? क्या फर्क है? इट इज मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, और ये क्या है? टोटल अमाउंट रिसीव्ड। फर्क है, फर्क है। देखो मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि मान लो एक इंडिविजुअल का बात करते हैं, ये है, मान लो मैं ही हूँ, मान लो ये सतीश सर है, ओके। अभी हम लोग है ना आवर्स में पेमेंट कर, हम लोग को आवर्स में पेमेंट मिलता है। मान लो मैंने एक महीने में क्या किया? 300 आवर्स का काम किया। कितने आवर्स का काम किया? 300 आवर्स। मान लो 1 आवर का मुझे मिलता है 1 रुपए। तो हाउ मच इनकम आई हैव जन, या कितने रुपए का गुड्स एंड सर्विसेज मैंने प्रोड्यूस किया? 300 रुपए का। तो दिस इज नेशनल इनकम, मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। लेकिन बताओ, इनकम रिसीव कैन बी इक्वल, कैन बी ग्रेटर और कैन बी लेसर देन दिस ऑल्सो। जैसे मुझे कंपनी ने पे किया 500, तो 300 तो मैंने अर्न किया, इट इज अमाउंट अर्न, एंड दिस इज अमाउंट रिसीव्ड, बिकॉज अर्न के अंदर क्या हो गया? मैंने प्री रिसीव कर डाला। लेकिन अभी मान लो लॉकडाउन का टाइम है, तो मैंने काम तो 300 का किया है, उन्होंने दिया सिर्फ 100 रुपया, तो ये अर्नड है और ये रिसीव्ड है। तो इस बार पर्सनल इनकम क्या बनेगा? अर्न माइनस आउटस्टैंडिंग। क्या बोलो, समझ में आया? सो दैट इज पर्सनल इनकम फॉर यू। तो क्या बोलेंगे हम, व्हाट इज पर्सनल इनकम? तो पर्सनल इनकम का सिंपल मतलब क्या है? रुको जरा मैं बता रहा हूँ। हाँ, जरा ये थोड़ा इसके जैसा है, क्या बोलते हैं, अकाउंट जैसा। हाँ, तो बताओ पर्सनल इनकम मतलब क्या रहेगा? तो सबसे पहले ले लो नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज व्हाट? इनकम अर्न। मान लो इनकम अर्न है 1000, लेकिन मिला 800, तो 800 कैसे आया यहाँ पे? नेशनल इनकम माइनस आपने क्या कर डाला? आउटस्टैंडिंग इनकम, करेक्ट। लेकिन आपने काम किया 1000 का एंड यू गॉट 1200, इसका मतलब आपने नेशनल इनकम के अंदर से क्या किया? ऐड प्री रिसीव्ड, ऐसा बोल सकते हैं हम, है ना? तो व्हाट इज पर्सनल इनकम? नेशनल इनकम माइनस आउटस्टैंडिंग प्लस प्री रिसीव। क्या समझा? अच्छा, ये एकदम अपने शॉर्टकट बना दिया। अब इसको तुम्हारे बुक में कैसे लिखा मालूम है? पर्सनल इनकम इज व्हाट? नेशनल इनकम माइनस इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, है ना? और प्री रिसीव को क्या बोलेंगे? एड इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड। क्या ये समझ में आया सबको अच्छे से? दैट इज पर्सनल इनकम फॉर। अब एक और कॉन्सेप्ट है, एक और कॉन्सेप्ट है, ओके। सो लास्ट कॉन्सेप्ट है डिस्पोजेबल इनकम। देखो क्या लिखा है डिस्पोजेबल इनकम? इट इज अमाउंट विच कैन बी स्पेंड, अमाउंट विच कैन बी स्पेंड। देखो डिस्पोज ऑफ मतलब क्या? पैसा खर्चा होना। तो पैसा जो हम खर्चा कर सकते हैं टोटल पूरे कंट्री का, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम।
या अमाउंट लेफ्ट इन हैंड आफ्टर पेइंग ऑल दी टैक्सेस, है ना. तो व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? इट इज पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल इनकम टैक्सेस, है ना. इनकम आया पूरा रिसीव, ऑफ कोर्स टैक्सेस पे करने के बाद जो बचेगा, that money can be spent on goods and services. Therefore it's called as disposable income. And these are the various concepts which are related to national income.